Assalamu alaikum. Welcome to SIA Conversations. Today is a very special conversation, like last week. We should call it a SIA weekly roundup, where we can all get together and discuss. And we will, as I said, we'll invite more people as we can think of them and bring them in. So today I have with me here my previous colleagues, Dr. Salman Shah, Shahid Kardar, Asad Shah Sahab, and Shabbar Zaidi is going to join us in a few minutes. So let's begin. Today we decided we're going to discuss governance because everybody felt that that was the biggest challenge Pakistan faces. And Shahji Salman Shah absolutely was vehement on this. So Shahji, I asked you to lead the discussion, so please go ahead, tell us. But all I will say right now is let's be very concrete. I mean, ये कहना, for example, कि rule of law होना चाहिए is meaningless. What is rule of law? मुझे तो rule of law का मतलब ही नहीं समझ आता. फुकुयामा ने जो define किया था rule of law, वो ये है कि rule of law applies to the sovereign. अगर sovereign को rule of law नहीं लग रहा तो फिर किसी को नहीं लग सकता. पहली चीज है सॉवरेन अपने ये प्रोटोकॉल और वीआईपी स्टेट्स वगैरह कम करेगा तो फिर रूल ऑफ लॉ लगेगा, वरना ये कि एक लॉ उनके लिए वीआईपी लेन उनके लिए और मेरे लिए नहीं, तो फिर रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता. सो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली वी शुड गेट. बाकी चीजें जो हैं, Asad Shah sent us a very good list, but we should talk about that. But Shahji, I'll start the ball rolling with you. Thank you. Basically, जो ये तो overall governance का, I think Asad has spelled out all the kind of what is the meaning of governance. अब it is a very wide canvas, and उसमें मैं एक add करूँगा from the perspective of economics. तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो भी इस गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो इन्होंने बताया उसमें embedded है. And that economic structure, when we talk about the IMF program and the structural reforms की जो बात होती है, so I think the IMF is not really interested in the overall governance जो हमने अभी जिसके बारे में बात की है, but they are more focused on the economic governance. And economic governance में फिर आपकी रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम एंड वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और वो इज इट मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल और नॉट. एंड सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक वी कैन हैव a separate kind of a discussion on overall governance and economic governance. जहाँ तक economic governance का तल्लक है, आई थिंक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इकोनॉमिक गवर्नेंस की आउटकम्स आर पैथेटिक ओवर द लास्ट 50 years or so, even longer than that. The output is very low. We are the lowest per capita income almost in the world. Child nutrition, stunting, I mean, we can have hundreds of indicators showing that the economic governance has not worked in terms of development and growth. And now we have an IMF program जहाँ पे एक stability वो कहते हैं हमने achieve कर ली है, but this is at a very low level of orbit, at a very low economic orbit, और इसमें से निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये sustainable नहीं है. Because of our youth bulge, because of the jobs we need to create, because of all the issues with respect to growth and the benefits of growth. तो अगर हमने ये तो एक फिर पूरा हमने ये भी डिस्कस की हुई हैं चीज़ें खासी हद तक. सवाल ये पैदा होता है कि आई स्टार्ट विद के इकोनॉमिक गवर्नेंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं. तो वो भी आई थिंक असद ने एक पॉइंट अपने लिखा था अबाउट द व्हाट इज द कॉर्पोरेट सेक्टर डूइंग ऑन दिस, एंड माय आइडिया आई हैव बीन क्वाइट impressed by guru of organizational design, which is Alfred Chandler, who many years ago rewrote organizational design for the American corporate sector. And one of his observation was that structure follows strategy.
ये बड़ा इम्पोर्टेंट उसका कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में यू कांट, द स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड, it has to change with the strategy you employ. So strategy का मतलब है कि structure has to be fluid and it can be reformed and it has to change according to what you want to do with it. So एक तो ये concept पाकिस्तान पे मेरा ख्याल है बहुत aptly apply होता है कि पाकिस्तान की जो भी हम strategy बनाते हैं वो इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट से नहीं चल सकता, and we have to change that structure so that it is aligned with what we want to do with the economy in terms of maybe growth, in terms of per capita income, in we have to be terms of more specific than that. You're remaining too general. We have to get to be नहीं, ये मैं फिर अब नेक्स्ट स्टेप मेरी इसमें सबको अब हम बताओ कि ये पाकिस्तान में जो मुसीबत पड़ी हुई है कि 80 साल से नहीं नहीं, ये मेरी पहले मुझे खत्म करने दो नदीम, फिर तुम आगे से चलना। अच्छा, अब इसमें जो है चैंडलर का जो आइडिया है, ही आल्सो डेवलप्ड के एक तो ये कि structure has to change because of strategy, which is the underlying principle for reforms. Number two is the organizational form जो उसने बनाई थी for big conglomerates in America, which was the corporate level, then the product divisions, and then the plant level. So a hierarchy of governance tiers थे, and इसको फिर उसने dovetail kiya into a matrix organization, which I think fits our structure in terms of the federal government, the provincial governments, and then we have the local governments. जिसको local governments को मैं दो चीजों में divide कर दूंगा, एक तो district level government, district government, and then you have the divisional government. So that fits in very well with this. और उसके साथ फिर उसने प्रोसेसेस की बात की है कि प्रोसेसेस जो है वो भी अलाइंड होने चाहिए विद योर स्ट्रेटजी। इन अदर वर्ड्स के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं हमारे हुकूमत के, वो एक इनकी एस्ट्रा कोड बुक जो है वो इज टोटली मिसअलाइंड विद द मिशन ऑफ द कंट्री इफ इट इज गोइंग टू बी ग्रोथ ओरिएंटेड सेटअप। तो फिर उसके प्रोसेस के बाद ही टॉक्स अबाउट पीपल के राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एंड अकाउंटेबिलिटी। सो आई थिंक ये अगर फ्रेमवर्क हम डेवलप कर लें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, एटलीस्ट इन दी सेटअप ऑफ द ऑपरेशनलाइज करो ना को ऑपरेशनलाइज करो, ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा बड़े आसानी से। इनफैक्ट ये इसीलिए मैंने ये रेज किया कि ये एक ऑपरेशनलाइज करना इसको कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं। नंबर दो इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है कि गवर्नेंस जो है हमारी मिनिस्ट्रीज की, एक तो नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज हैव टू बी अलाइन्ड विद व्हाट वी वांट टू डू एंड इट कांट बी ऑल ओवर द प्लेस। एंड नंबर टू है कि ये जो इनकी अकाउंटेबिलिटी है मिनिस्ट्रीज की, आई फाइंड द न्यूजीलैंड मॉडल ऑफ every ministry having a balance sheet and an income statement, and then looking at how are they using the resources, and are those resources being used in the interest of the public, and uske kya returns, and they are evaluated on that basis. So I think the number one हमने बात की कि structure follows strategy. Number two कि accountability जो है ये documented बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट से इनको बनानी पड़ेंगी और इनको बताना पड़ेगा कि इनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसको इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। नंबर तीन, आई थिंक जो प्रिंसिपल विच आई वुड लुक एट व्हेन आई लुक एट द रिफॉर्म एजेंडा is the concept of zero-based budgeting, which basically means that each ministry will have to justify in every budget why they exist and what are they doing in this respect. तो ये तीन चार जो principles हैं इसके ऊपर अगर हम follow करें तो we can very easily redesign the governance, at least in the economics sector. We can set the target के ministries, economic ministry
2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, और ओवरऑल मिनिस्ट्रीज कैन बी अबाउट 15 एंड नॉट द नंबर विच वी हैव टुडे। एंड राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम जीरो बेस्ड बजटिंग लगा के वी कैन check out the ministries who are not really needed. तो आई थिंक एक फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म्स बन जाता है, और इसके बाद फिर इसको हमें विल सिट डाउन एंड ऑपरेशनलाइज दीज आइडियाज। एंड आई पर्सनली थिंक we have to have almost a mission driven kind of economic governance के जो और वो मिशन इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ है in a very substantial manner, and replacing bureaucratically controlled economy with the market economy. So ये I think एक framework अगर हम बना लेते हैं तो then we can get into the nitty gritty of how each of it this has to be done. I think इसको अगर आपके पास mandate हो and you need a huge mandate for this because as you said, who has the power? I am assuming that at some point in time there will be a representative democratic government, और उसके पास अगर mandate होगा तो वो we can the mic. चले क्यों जी? Anybody? शायद असद बताइए जी। I think this is too general. I think we have to be more specific. But the basic concepts, obviously, we have to confine to that. What are the concepts? शाह साहब ने जो बातें की हैं broadly, जाहिर है economic governance also comes out of the broad fundamental concepts of governance. And just to I think give you the context, I think it's important to define what is good governance. Good governance is defined as the interaction between laws, institutions, processes, and leadership that channels public power in a manner that is transparent, participatory, accountable, rule-based, equitable, and strategic. Its purpose is to use public authority and resources responsibly and fairly to secure rights, deliver services, promote sustainable development, and build trust. तो ये fundamental जो definition है, I think broadly different people may have defined it slightly differently, but fundamental ये है. मेरा सिर्फ उसमें ये है कि unless you have the right structures and processes, you cannot just have economic good governance, and you cannot progress, for instance, without social governance in the social sectors, for instance. If you don't have good human development and good human resource, human capital, you cannot progress economically. तो एक holistic approach जो है ना, वो governance में उसके जो structures, processes and institutions. Or as far as institutions are concerned, देखिए, we have to, and it's not just about policies. Obviously, policies are important, but it is also day-to-day decision making. When you have the right structures and processes and right objectives identified and accountability structures, then, and of course, you also need right person for the right job. ये सारी चीजें जब होंगी तो आपकी डे टू डे डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी. गलतियां भी होंगी, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी. You see, so the policies, you may adopt the best policies जो शाह साहब कह रहे हैं, but who is going to implement them? हम, as far as policies are concerned, as far as broad reform agenda is concerned, मेरे ख्याल में 70-80% IMF भी वही बात करता है, different governments भी वही बात करती हैं, लेकिन असल इशू ये है कि चीजें implement नहीं होती. There is no IMF. Shasab, do you agree with the IMF? I don't. ये जो हमें टैक्स नहीं, मैं सारी चीजों से तो एग्री नहीं करता, लेकिन देखिए बात तो वो भी यही करते हैं ना
कि प्राइवेट सेक्टर शुड बी the engine of growth. I वो अलग disagree. बात है कि I don't think private sector should be the engine of growth. I think we also have to be a little provocative. What is private sector going to do? कि जी प्राइवेट सेक्टर जो हमारा है एक रेंट सीकिंग प्राइवेट सेक्टर जो साली असेंबली प्लांट्स लगाते हैं जो सब्सिडी लेते हैं हर चीज पे, should that be the engine of growth? I don't think so. No. We have to be very clear कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब, लेकिन remember आप शाह साहब, उसको even कैसे though- अचीव करेंगे? वो भी यही कहते हैं नदीम, जो आप कह रहे हैं वो भी यही कहते हैं. IMF has sided with this system. देखिए मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, but honestly I think IMF has the wrong agenda and we should recognize that. जी शायद साहब आप बताइए क्या ख्याल है? नहीं, देखें बात ये है कि एक तो ये कि दिस डिस्कशन वो जो फ्रेमवर्क है वो ब्रॉडली उस पर मेरे ख्याल the framework will tend to be a little general, but I think we need to break them down into the kind of topics that we can discuss. I mean, the power structure, the political stability part, ये वो है, और the economic governance के भी को further subdivide करना पड़ा. So मेरे नजदीक it will have to be done in that way कि जी हम फैसले कर लें कि यार ये 4-5 चीजें हैं so that we can be much more precise. अच्छा, उसमें सिर्फ एक चीज पे मैं जो टोटल अग्री कर रहा हूँ ना, वो ये है कि यार ये स्ट्रक्चर जो है ये कैसे आता है. टू मी, आई एम सॉरी, मेरी सुई फंस जाती है कि यार क्लैरिटी ऑन गवर्नमेंट से क्या करवाना है. दैट्स व्हाट आई कीप आस्किंग माई सेल्फ, बिकॉज देन यू सी what functions should the government perform and pay for? It should also fund and pay for. What functions the government should not perform but pay for? For instance, it should be supporting research and development, but तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम करो. So that's the kind of, and then what functions it should neither perform nor actually fund. And the reason why I'm saying all that is this will determine the size, the footfall of government, and which level of government would perform which function. क्योंकि ये जितनी देर तक क्लैरिटी मेरे नहीं आएगी ना, वो स्ट्रक्चर जिसकी सब बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर वहीं से आएगा कि यार ये स्ट्रक्चर आप जो कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए which will deliver on all these. We need to be much clearer ताकि फिर वो जो इशू है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, वो सारा उसका हिस्सा उस हिसाब से बनेगा. सो आई विल स्टॉप हियर बाय जस्ट रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स कि यार ये एक मल्टी डायमेंशनल है. वी नीड टू आइडेंटिफाई कि यार ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पार्ट लिंक्ड है कि वी कैन पुल देम ऑल टुगेदर राइट एट द एंड, बट शुरू में ये वाली बात कर ली जाए कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली बात, इकोनॉमिक गवर्नेंस को फर्दर स्प्लिट कर लिया जाए, रूल ऑफ लॉ वगैरह जो आप बात कर रहे हैं. आई मीन यू नो इन योर फेवरेट टॉपिक रेगुलेशन, मुझे आज तक नहीं समझ आई कि एक चीज रेगुलेट करने की जरूरत क्या है. यू नो वो तो बाद की बात है ना, और वो स्ट्रक्चर से निकलता है. ठीक. सो रूल ऑफ लॉ के जी रेगुलेशन बड़ी जरूरी है. मुझे आज तक नहीं समझ आया क्यों करने की जरूरत है कुछ चीजों की, और अगर करने की भी जरूरत है, व्हाट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू डू सो. Let's first get a consensus कि ये regulate. I'm just illustrating a point and I'll stop after this. Idea being clarity on structure बहुत जरूरी है. शायद मैं यहाँ इसको क्लैरिफाई कर दूँ. Let's start very quickly. But शायद said I agree wholeheartedly कि जी we need to discuss where we are. शाह जी ने भी कहा था कि हमें पहले वो डिसाइड कर लें स्ट्रैटेजी. तो let's decide. ठीक, चैंडलर वाली डिस्कशन कर लें. हम कौन सा स्टेट बनना चाहते हैं? Do we want to be a socialist state? तो फिर डीसी रेट जो प्राइसेस है ये क्यों हम फिक्स कर रहे हैं? ठीक है, व्हाई इज द स्टेट इनटू फिक्सिंग सो मेनी प्राइसेस? तो पहले ये तो सेटल कर लेना कि अगर वी वांट टू बी अ सोशलिस्ट स्टेट देन वी शुड बी अ फुली सोशलिस्ट स्टेट. पर अगर ये करना है कि डीसी रेट भी है, प्राइसेस भी हैं, ये भी है, वो भी है, वो डीसी साहब सुबह उठ के आपको खाना भी खिलाएंगे, आपको माशाल्लाह पिट्ठी भी पहुंचेंगे, तो फिर आई एम सॉरी वी हैव टू थिंक अबाउट इट. तो पहली चीज तो ये, इफ यू डोंट वांट टू बी अ सोशलिस्ट स्टेट देन वी हैव टू बी वेरी क्लियर that the government has to have a very limited role. And then the government, even in the US, is trying to do this. It's trying to use security as a means to gain more power. ये भी हमें into account लेने के government जो भी in power आएगी वो और power लेगी. ट्रम्प भी ले रहा है, वो भी यूरोप में भी कर रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, यहाँ तो खैर चल ही रहा है शुरू दिन से. अब जो कहा था मोंटेस्क्यू ने, फाउंडिंग फादर साहब ने, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन होती है that determines the limitations of power. जो
मुझे हिस्ट्री याद है, वो ये है कि जी किंग को उन्होंने डिवाइन राइट ऑफ किंग्स खत्म किया था और कहा था कॉन्स्टिट्यूशन रूल करेगी। मैं तो सोचता हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़े फ्लॉज है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या वजह है कि बार बार डायनेस्टी लेके आती है? पहले इस पे तो गौर करें ना कि अगर हमने रूल ऑफ मरियम और बिलावल में रहना है तो क्वाइट फ्रैंकली वी मेड नो प्रोग्रेस। कल रात मेरी बात हुई है कुछ लिबरल्स है जो बैठे हुए थे बड़ी गैदरिंग पे, माशाल्लाह आपके बड़े फेवरेट लोग, वो सारे मुझे मेरे से लड़ पड़े कि जी ये तुम क्या कह रहे हो, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, वो चर्चिल वाला फ्रेज, ठीक है। मुझे बताइए, इज डेमोक्रेसी सूटिंग अस? पहली चीज तो लेट्स बी प्रोवोकेटिव, एंड इफ वी वांट डेमोक्रेसी, is this 1935 government of India Act enough or do we want to change it? ये बताइए, let's get specific. देखो अब मैं इसलिए कहा ना कि you have to and देखो we need to be clear कि किन चीजों की बात करें. Let's agree on topics and then we can be much more specific. बिल्कुल. ठीक है. So we can talk about the political structure and the power structure. अब आपने जो बात की, मैं देखिए ना, बात ये if you have decided on a parliamentary form of government. पहले डिसाइड कर लो, are we a socialist country or not? पहले let's be. एक सेकंड. We have a, देखो एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले फैसला कर लें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके पास होगी या नहीं होगी. ठीक है. सो इफ दैट इज द केस, उसमें क्या क्या चीजें, सो इसकी डिटर्मिनेशन कौन करेगा कि जी फिर अगर आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम रखना है तो इसकी डिटर्मिनेशन कौन करेगा कि जी यार ये किस सिमत में जाना है, क्या करना है. सो एक तो ये है, और सेकेंडली उससे ही लिंक्ड है कि यार वो जो आपने बात की वो इसकी कि जी ये डायनेस्टी है. मैं not that I like dynasties, I keep asking myself this question. यार उनको वोट पड़ा है नहीं पड़ा, उनको वोट पड़ा ही नहीं पड़ा. ठीक, आप लिमिट्स लगा दें ऑन द प्राइम मिनिस्टर, बट आप उसके बाद ये कहें कि यार बिलावल नहीं हो सकता, ये आई डोंट लाइक देम, बस दैट द पॉइंट, नॉट द पॉइंट. पहले फैसला कर लें कि ये उनको वोट पड़ा या नहीं पड़ा. मतलब टू मी आई हैव दिस प्रॉब्लम. मेरी गुजारिश ये है कि पहले फैसला कर लें कि जी हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स अलहदा डिस्कस करने, इकोनॉमिक गवर्नेंस वाले अलहदा करने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी कैन मूव ऑन दैट बेसिस. और इकोनॉमिक गवर्नेंस को फर्दर सब डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट ईजियर टू डिस्कस दोस and break them up into 2-3 areas, ताकि बात करना और उस पर एक फैसला करना. फैसला क्या करना, रिकमेंडेशंस अपनी तरफ से प्रपोज करना. Don't you think कि ये वोट वाला जो बिजनेस है, we have already seen कि वोट की कोई इज्जत नहीं है, and so what you are saying is नहीं, तो फिर मैं तो यही कह रहा हूँ फैसला कर लेना कि पॉलिटिकल. देखो फैसला तो आपने नहीं ना करना, वो तो फैसला जिनके पास ताकत है उन्होंने करना है. और सवाल ये पैदा होता है कि जो नदीम ने बात की है कि अगर ये आप जो ये वोट की इज्जत नहीं होती तो फिर क्या हम इसी तरह एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट के तौर पे चलते रहें, या क्या हमें इस स्टेट को एक इकोनॉमी ड्रिवन, मार्केट ड्रिवन कर सकते हैं कि नहीं, मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए या सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए? ये तो एक बहस कर सकते हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ सॉरी एक सेकंड है या नहीं है. एक सेकंड, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूँ. स्टॉप. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप फैसला कर लें कि यार हमने पावर स्ट्रक्चर वगैरह की बात नहीं करती, वी विल ओनली लुक एट द इकोनॉमिक गवर्नेंस पार्ट. आई हैव नो प्रॉब्लम. देन वी कैन से ये हमारे बस की बात नहीं है और हम इकोनॉमिक वाली साइड बस की बात नहीं है. लेट्स फोकस ऑन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. नहीं, मैं कह रहा हूँ सो लेट्स टेक अ डिसीजन कि हम वो वाली डिस्कशन नहीं करेंगे कि जी कोई भी स्ट्रक्चर हो, कम से कम इकोनॉमिक गवर्नेंस की बात करें. आई हैव नो प्रॉब्लम, वी कैन मूव ऑन दैट. Maybe we can do कि इकोनॉमिक गवर्नेंस की हम बात करके फिर हम उसके ऊपर आएंगे ये जो पावर स्ट्रक्चर है इसको कैसे ठीक किया जा सके. नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए ये जो आप दोनों नदीम ने पावर उस चीज से बात शुरू कर दी थी, इसलिए मैं बोला, वरना आई एम क्वाइट हैप्पी सेपरेटिंग द टू एंड जस्ट फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक गवर्नेंस. सॉरी असद, आई विल स्टॉप. मैं ये कह रहा हूं कि as far as economic governance broad policies are concerned, जो मेरा अपना ये ख्याल है कि उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में
ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, देयर इज अ डिस्कनेक्ट। मतलब ये है कि देखिए ना, IMF भी कहती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं कि जैसे मैंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, डीरेगुलेशन होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर शुड बी द इंजन ऑफ ग्रोथ। लेकिन एक्चुअल होता क्या है, वी कीप ऑन एक्सपेंडिंग द पब्लिक सेक्टर, जो नदीम जो कह रहे हैं। तो एक्चुअली देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू। और वो इसलिए है कि अवर फॉरम्स ऑफ गवर्नेंस, वहां प्रॉब्लम है। आई एग्री के बात ये है ना कि नदीम ने और कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है। देखिए, नो कॉन्स्टिट्यूशन इज विल बी परफेक्ट, नो सिस्टम विल बी परफेक्ट ऑल्सो। द थिंग इज कि आर वी इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो सवाल तो ये है ना। आप इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है की बात कर रहे हैं, बट इकोनॉमिक गवर्नेंस विल फ्लो आउट ऑफ ओवरऑल गवर्नेंस, एंड वो तब होगी जब जो भी हम जिस पे एग्री किया हुआ है, अभी तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन एग्री किया है ना, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वोट को इज्जत दो की बात है, उसमें इलेक्शंस की बात है, लेकिन वो अगर इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर आप जो बात कर रहे हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होगी? Let me be the devil's advocate. तो ये बताएं कि पिनोशे ने जो चिली में एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को चेंज करके एक मार्केट इकोनॉमी बनाया, तो वहां तो कोई वोट शोट नहीं हुआ ना, उसने बना दिया, कर दिया, और आज तक वो चल रहा है। सो आई थिंक ये जो है ना कि कॉजेलिटी क्या है कि पहले आप वोट को इज्जत दो और फिर ये सब कुछ होगा, या उसके बगैर भी हो सकता है। Let me just say, let's go to economic governance. Okay, forget that. I submit. Let me ask you a simple question now. Economic governance. एक सेकंड, अब इकोनॉमिक गवर्नेंस पे जरा आ जाए। पहली चीज तो डील करें कि हम कौन से स्टेट में रह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इज इट अ सोशलिस्ट स्टेट जहां लोगों को राशन कार्ड भी बांट रहे हैं आजकल, जहां लोगों को 1000 किस्म की प्रोमिसेस कर रहे हैं और कह रहे हैं हम आपका एक, चले सोशलिस्ट भी नहीं, इट्स अ पेट्रोनेज स्टेट। डू वी वांट पेट्रोनेज टू कंटिन्यू और हाउ डू वी कट पेट्रोनेज? मेरा तो ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले अब डीसी की जो पावर है और जो सिविल सर्विस की पावर है उसको कट करें। डीसी की रन्स द मार्केट कमिटीज फॉर एग्रीकल्चर, डीसी फिक्सेस द प्राइसेस, ये जो निजाम है, और स्टेट लव्स दिस। दूसरी चीज जो है, स्टेट पेट्रोनेज पे, इलेक्शन भी स्टेट पेट्रोनेज पे चलती है सारी। अभी असद कह रहा था कि जी वो सिर्फ अपने, हर बंदा चाहता है मैं विनिंग पार्टी के साथ हूं। क्यों हो? क्योंकि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे ये हो जाएगा। सरकारी नौकरियां सारी पॉलिटिकल पेट्रोनेज पे दी जाती हैं। अब ये चीजें मुझे बताएं कि चले हम सोशलिस्ट नहीं कहते, पेट्रोनेज स्टेट को कैसे खत्म करें अगर इकोनॉमिक गवर्नेंस में रहे? इफ यू एग्री विद मी, पेट्रोनेज स्टेट इज अ प्रॉब्लम, हाउ डू वी रिड्यूस इट? But Nadeem, I think we should be bold enough to say कि भाई ये सोशलिस्ट गवर्नेंस जो है वो कहीं पे कामयाब नहीं हुई अभी तक। नहीं वो तो ठीक, बट इसको वो हम बात छेड़ेंगे। हो गई है ना। तो अब आके आपने डिसाइड, जो पहला तुम्हारा सवाल था कि आप ये सोशलिस्ट स्टेट और आप ये मार्केट इकोनॉमी, बताएं, let's be frank about that. हाँ, And I think the evidence around the world is that yes, you have to be a market economy and you have to get the bureaucrats out of running the economy, and the market has to be deciding how resources are allocated and how pricing is done. And उसके साथ जो भी incentives होते हैं, because it generates lots of incentives. फिर और वो उसमें incentives आएंगे for नहीं, आपको छोड़, modernization of production systems, and Sir ji, वो let's get incentivize होगा। तो वो इंसेंटिव सिस्टम जब तक नहीं होगा तो आप ये ब्यूरोक्रेट को बंद कर देंगे तो वो एक ठीक है, गैप आ जाएगा। तो यू हैव टू क्रिएट। नदीम साहब में एक लफ्ज स्पेसिफिक ये है, पहली चीज प्राइस फिक्सिंग बंद करें एंड मार्केट्स बनाएं। मार्केट्स अभी तक है ही नहीं मुल्क में, क्योंकि एवरी बस इसको क्लियरली कहो ना, यू शुड नॉट बी apologetic about it. वी आर नॉट बीइंग apologetic, raising। हाँ जी बोले। बेटर वे टू लुक एट इट वुड बी टू से कि यार गवर्नमेंट के रोल के हवाले से और डिस्क्रेशन, वो जो आप बार बार बात कर रहे हैं डिस्क्रेशन, ये सिस्टम में if you take away the discretion, if you take away all these powers, then you will reduce the incentive for people wanting to become in power as well as to become bureaucrats. मेरे नजदीक ये वाला इशू ज्यादा है। इफेक्टिव डिस्क्रेशन कहाँ है? We need a general sort of state discretion। चाहता हूँ मुझे वक्त, नदीम साहब मेरी गुजारिश है कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं
और जो हमने पहले भी की थी, मेरी थोड़ी सी गुजारिश ये है कि हम थोड़ा इसको आसान रखें एक आम आदमी को समझने के लिए। जब हम बार बार लफ्ज गवर्नेंस कहते हैं ना जी, तो आपको मेरे और शायद सलमान साहब को तो समझ आ जाती है, पर एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी को ये समझ नहीं आती कि गवर्नेंस का मतलब क्या है। तो अगर थोड़ा सा आप इसको, अगर आप या समझदार आदमी ये बता दें कि ये हम गवर्नेंस का मतलब क्या है बेसिकली। लेकिन गवर्नेंस का मतलब निजाम है, निजाम जो चल रहे हैं, हमारा निजाम जो है, मैं इसको दोबारा डिस्क्राइब करूं उर्दू में? नहीं, वो हाँ, उर्दू में करें, वो बहुत मुझे भी नहीं समझ आई उसकी। ये ना कि हमने इतना दफा ये लफ्ज गवर्नेंस गवर्नेंस इस्तेमाल किया है। गवर्नेंस इसको इतना सही कह रहे हो तुम, इतना उसको आसान जबान में गवर्नेंस जो है वो ये है कि आपका सिस्टम, आपके कानून, आपका निज़ाम और आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरह से फंक्शन करने चाहिए उनको, और उनको जो पावर मिलती है वो इस तरह से करें कि उससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो, उनके एजुकेशन, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, वो बेहतर हो, उनकी प्रोग्रेस, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। तो ये है बिल्कुल सिंपल। उसके लिए समझ के मैं सिर्फ नदीम को और बास साहब को ये कह रहा हूँ कि जब हम लफ्ज गवर्नेंस इस्तेमाल करते हैं तो अभी हम शुरू करेंगे तो हमें इसको बड़ा आसान में बता देना चाहिए, क्योंकि ये लफ्ज इतना बुरी तरह इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान में कि वो खुद एक ब्यूरोक्रेसी बन गई है गवर्नेंस के नाम पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और ये गवर्नेंस तो जो हम जरा इसको अपने लोगों के लिए, आम आदमी के लिए समझा दें कि हम क्या कह रहे हैं। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, ये आपकी बात 100% मैं एग्री करता हूँ, पर मैं तभी जान के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली चीज हम ये तो एग्री कर लें कि किसी बाबू का काम नहीं कोई कीमत फिक्स करे, चाहे पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, चाहे आटा हो, चाहे कुछ, चाहे जमीन की कीमत हो। ये जो FBR रेट, DC रेट वगैरह, ये बुलशिट जो चल रही है इस मुल्क में, जो सोवियत निजाम चल रहा है, पहले इसको तो हम एग्री कर लें कि वी शुड स्टॉप दिस। नंबर 2 कि ये जो तमाशा है कि हर चीज में DC की परमिशन होती है, कमिश्नर की परमिशन होती है, 1000 इदारे, रेगुलेटरी एजेंसीज हमारे पास इस्लामाबाद में सिर्फ 122 रेगुलेटरी एजेंसीज है। हर बंदे ने, अभी मेरा ख्याल हमारे बोलते बोलते कोई 10-15 और बन गई है। अभी रिसेंटली एक रेगुलेटरी एजेंसी बन गई है, उनके ऊपर रेगुलेटरी एजेंसी बन रही है। तो ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं ये कुछ नहीं करती सिवाय कारोबार रोकने की, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके टैक्स निजाम पे। टैक्स निजाम, आपका टैक्स निजाम वही वाला जो शेरिफ ऑफ नॉटिंघम का था। तो हम 2 चीजें तो एग्री कर लेना। नंबर 1 कि रेगुलेटरी एजेंसी बनाना बंद करें। नंबर 2 ये प्राइस फिक्सिंग बंद करें। नंबर 3 जो भी रेगुलेशन है वो कोडिफाई करके नेट पे डालें, NOC का निजाम खत्म करें, पॉजिटिविटी की तरफ आए। जैसे याद एक जमाने में होती थी नेगेटिव लिस्ट इंपोर्ट की, उन्होंने वो खत्म की और उन्होंने पॉजिटिव लिस्ट लेके आए। हम भी रेगुलेशन पॉजिटिव लेके आए कि भाई ये नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि NOC लोगे, NOC का निजाम डिस्क्रिशनरी है, लाइसेंस का निजाम डिस्क्रिशनरी है, ये खत्म करें और आए इस निजाम पे कि भाई तुम घर जो है ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे बना सकते हो, बस खत्म बात। और वो एक पूरे शहर का हो, ये नहीं कि हर जगह का अलहदा हो। तो इस किस्म की चीजें अगर हम बात करें, सिंपल रेगुलेटरी निजाम, रेगुलेटरी निजाम जो भी बनता है सिर्फ ब्यूरोक्रेट की नौकरी की खतर बनता है। Why can't we get rid of this? ये बताइए, इस पे what do you think? जी आप अब देखिए चले करने बात एक एक करके आप बताएं, मुझे भी बोलना है इसके ऊपर। नहीं आप बोले then I'll come back. आप कर ले बात। नदीम देखें, there is जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड ऑब्वियसली आई मे बी रॉन्ग, कोई दुनिया की स्टेट नहीं है जहां पर जो है बिल्कुल ही लेस ऑफ फेयर टाइप की चीज जो आप बात कर रहे हैं कि हर चीज खुद रेगुलेट करेगी। जब आपकी कोई सोसाइटी होती है और कोई, मैं ये कह रहा हूं कि आप पॉजिटिव रेगुलेशन रखें। आप बताएं क्या करना है। जो है परमिशन लेने पे आ रहा हूं। प्लीज सर, मे आई गो टू द बाथरूम वाली रेगुलेशन बंद कर दे। दैट्स ऑल। Absolutely, it's a question of degrees. देखें, there will be a combination. Largely, it should be market economy. आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें
इवन यूएस में भी हेल्थ केयर जहाँ तक बात है, लोगों की वेलफेयर, तो उसमें गवर्नमेंट जो है ना, आफ्टर ऑल ये जो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, इट्स वही कॉन्सेप्ट है ना, रॉबिंग पीटर टू पे पॉल वाली बात है ना, कि मतलब जो बिल्कुल ही लोअर क्लास है, गरीब हैं, वो आर नॉट एबल टू डू मच, उनके लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, आई थिंक इज अ गुड आइडिया। ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, उसको और बेहतर किया जा सकता है और कॉम्पिटिटिव किया जा सकता है। तो वी नीड रेगुलेशन, बट मिनिमल रेगुलेशन और मच लोअर रेगुलेशन बट ये than रेगुलेशन I नहीं think है we have सर। been doing. We don't need strangulation. BISP is not a regulation, it is a safety net, which is fine. BISP Point is that we are discussing something very important. Or go Nadeem is hitting a wall over here. He asked a very simple question कि bureaucrat decision making में discretion उसकी आपकी कैसे आवाज नहीं आ खत्म रही की शाह जाए। साहब। सलमान साहब तुसी माइक अपना पिक कर लाओ, जी, माइक हाथ में रखें मैं ये कह रहा हूँ कि और कैमरा ऑन रखें। नदीम का बहुत सिंपल एक आइडिया है कि भाई आप ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस खत्म करें इकोनॉमी में, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, वेदर यू वांट टू कॉल इट डीरेगुलेशन और वेदर यू वांट टू कॉल इट मार्केट इकोनॉमी, जो भी है, सरकार का रोल आप खत्म करें। So I think that is something which is very apparent कि ब्यूरोक्रेट्स ने अभी तक जो 50-60 साल हमारे साथ किया है, उसने हमें दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बना के छोड़ दिया। So we have to do it and I think इसके ऊपर हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। We are kind of being apologetic. I think कि अगर once you decide कि हमने एक निज़ाम ऐसा बनाना है जो इसमें प्राइसिंग और रिसोर्स एलोकेशन ब्यूरोक्रेसी के हाथ से निकल जाएगी और वो मार्केट में होगी, तो बाकी जो उसको करने के लिए तो हमारे सामने हर किस्म के रोल मॉडल्स हैं, फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप टू चाइना टू मलेशिया टू इंडोनेशिया एंड एवरीवेयर। तो आई थिंक कि हमें ये एक जो है ना कि अगर हमें कोई मसला हुआ कि हम ब्यूरोक्रेट्स को घर भेज देंगे तो इकोनॉमी बैठ जाएगी या काम नहीं होगा, काम रुक जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एंड इवन इफ वी से लेसेस फेयर करना है तो वो भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आप व्हाई कांट वी कंसिडर दैट? अगर मार्केट आपकी अच्छी फंक्शन करे, इफ इट मार्केट इज competitive, there are no barriers to entry, जो वहाँ पे आप, and there are no barriers to exit, और आप ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा उनमें पार्टिसिपेट करें, तो व्हाट इज द हार्म? देखिए, जो काम रेगुलेशन का असल काम इज वॉचडॉग, नॉट परमिशंस। दे शुड बी अ वॉचडॉग एंड दे शुड इंटरफेयर जहां जरूरत हो, वरना ये जो है कि परमिशन मेरे से आके लो, मेरे दफ्तर के बाहर 10 घंटे बैठो, बल्कि 10 दिन बैठो, 10 महीने बैठो। नदीम, I'll go beyond that. Sorry, I'll go beyond that. मैं ये कह रहा हूँ वजह कि होनी है ये नहीं, जैसे आप कह रहे थे, but there are better instruments. I'll give you the simplest example I can think of. Your favorite subject कि यार ये जो हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, मैं पूछ रहा हूँ कि I can understand a public building which is being used for private purposes, है? Cinema hall है, auditorium है, you name it, which is, If you're so talking you to would some- want safety and security, ठीक? Now there are two ways to do it. आप कहें कि यार building inspector भेजूंगा, electricity inspector भेजूंगा. The other way is to say, and I'm referring to the instruments to achieve the same objective, कि यार अपनी building insure करा लो. To me, it is not just कि जी ये रेगुलेशन होनी चाहिए नहीं चाहिए. Once we agree कि यार इसकी जरूरत है, to me there are better instruments available even in this country today. Very well put. Agreed, totally. अच्छा, इसके साथ अब एक और चीज साथ डाल दें इकोनॉमिक गवर्नेंस में. What do we think of openness? क्या टैरिफ्स हमारे इस वक्त मेरे ख्याल 40% के करीब है. Should we have an open economy? Should we not? Should we allow some of our 70-year-old infants to die, or should they continue to live forever? हमारी ये जो आपका पुराना इदारा सपोर्ट कर रहा है कि उसको तो रेवेन्यू चाहिए ना. आपका पुराना इदारा ने मरवा दिया हम सबको. यही मैं कह रहा था. तो मुझे बताइए ओपननेस पे हमारा क्या ख्याल है? आप ट्रम्प
ट्रम्प टैरिफ से आ गए हैं, ट्रम्पियन उस पे टर्मोइल यार जो क्रिएट किया है। Nadeem, I- if we can take the decision as a as a government, not us obviously, कि यार बात ये है कि ये बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, इसको 60 साल हो गए हमें, वो 50 साल तो हो गए उसको, ऑटोमोबाइल वाले को और फलां को, कि यार ये बच्चा बड़ा नहीं हुआ, ठीक। तो यार ये बच्चा, इसको इतने हमने दूध पिलाया, उसने उल्टियां करनी शुरू कर दी हैं बिकॉज उसको इतना दूध पिला दिया। सो ये Oops. शायद जो होता है शायद ना, का आवाज नहीं आ रही। I think we kind of lost him. चलिए एक और, sorry, go ahead, शायद। आपकी आवाज चली गई थी, go ahead, शायद। Good. Acha, let me also add, we've got some other people who joined us. If anybody wants to talk, please raise your hand. Shahid, are you there or not? I think Shahid hai to say, but we can't hear him. Shahid, we can't hear you. चलें जी, so openness पे बताइए क्या ख्याल है जनाब असद साहब, would you agree with openness? Absolutely, ji. Openness is a fundamental, transparency and openness is a fundamental part of governance. And it provides a check and balance. लेकिन जो पहले वाली आपकी बात थी ना, आप सही कहते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी has not worked and decision making has not been good. बट ये भी मैं आपको बताऊं कि देखें, कोई भी दुनिया का मुल्क जो है ब्यूरोक्रेसी के बगैर नहीं चल सकता। उनका मतलब ये है कि वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वी हैव टू सेट अप स्ट्रक्चर्स टू होल्ड देम अकाउंटेबल। Ultimately, decision making should be at the political level, but the bureaucracy is essential to do the groundwork and do the technical work and provide support. अब वो तो डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है। Not to give permissions. बिल्कुल मानता हूँ। Absolutely, that should be minimized. But there will be some intervention as देखें, दुनिया जो है ना, कोई परफेक्ट जगह तो है नहीं ना। There are different consequences of different decisions, and आपको थोड़ा ज़्यादा interventions करनी होती हैं markets में, but these should be minimized. We can agree, market economy means substantially minimal regulations and minimal interventions, but you have to intervene when there is a situation. लेकिन जी अगर ब्यूरोक्रेट को डिस्टिंक्शन दे देंगे वो तो फिर इंटरफेयर करेगा। उसको अगर बोर्ड पे उसको रिड्यूस करें और क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इट्स द क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। You have to move forward from this position क्योंकि ये I think सही नहीं है। Don't leave a door open for पीछे से बैक एंट्री के लिए। नदीम साहब एक मिनट देंगे। You have to basically, I think, look at what are the pillars of a market economy, और उसमें regulation has to be, as Nadeem said, positive regulation rather than regulation all across. And who gave the bureaucrat that they had the public interest at heart? They don't have a public interest at heart. So आप decide करें कि भाई हमने regulation किस तरीके से करनी है। And I think Shahid gave a very good example of that is also deregulation के आप इंश्योरेंस करवा लें और बाकी regulations खत्म करा दें। So I think we can do light regulation. दूसरा बात जो नदीम अब कर रहे हैं लिबरलाइजेशन की, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक मार्केट इकोनॉमी बनानी है और उसमें आपने अपने प्लेयर्स जो हैं, आपके जो participants हैं on the supply side and particularly on the supply side, then you have to open up the economy, then you have to liberalize the economy ताकि जब उनको competition पड़ेगा तो वो improve करेंगे. So the incentives which liberalization will create would be very positive for your competitiveness and productivity, even though in the short run you may feel some pain. But इसके साथ बहुत ज़रूरी होगा कि आप exchange rate को भी फिर market driven totally करेंगे ताकि कोई adjustments वगैरह हो तो कुछ exchange rate के through भी adjustments हो सकें. So I think I am all for liberalization, and it's about time that Pakistan embraces these policies. यार, we are 50 years late in these policies. तो अब इसके ऊपर इतनी बहस करने के हम confuse हो जाएं सारे, तो I think that's not appropriate. नदीम साहब मुझे मौका देंगे 2 मिनट के? बोलिए। नदीम साहब देखें, जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, मेरा जाती व्यू है कि ये सारी बातों पर हम काफी ज्यादा
काम ऑलरेडी कर चुके हैं इन दी फर्स्ट 4 ईयर ऑफ जनरल मुशर्रफ। और जो सारे आप लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें मुशर्रफ साहब ने खड़ी कर दी थी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम जनरलाइजेशन से आगे बढ़कर स्पेसिफिक पे जाएं। मैं आपके सामने 8 रेगुलेटरी एजेंसी का नाम दे रहा हूं, आप लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको नाम देता हूं। ओगरा, नेपरा, एससीसीपी, सीसीपी, पेमरा, एफबीआर, पीटीए और एचईसी। ये सारी रेगुलेटरी एजेंसी मुशर्रफ साहब ने बाय लॉ ब्यूरोक्रेसी से फारिग कर दी थी। अगर मैं आपको सबका दिखा सकता हूँ रेगुलेशन, ओगरा, आप जब ये सारी अपनी कंक्लूजन करेंगे तो उसी नतीजे में पहुंचेंगे जो मुशर्रफ साहब करके जा चुके हैं। ओगरा, नेपरा, एससीसीपी, सीसीपी, पेमरा, एफबीआर, पीटीए और एचईसी। ठीक है, जब ये हमारे लोग आए, जब मुशर्रफ साहब ने क्यों की गवर्नमेंट लाए और पॉलिटिकल लोग आते हैं, तो ये जो 8 मैंने आपको रेगुलेटर बनाए, इन रेगुलेटर को डिसफंक्शनल करते हैं, मिनिस्ट्री टेक ओवर करते हैं और पूरे सिस्टम को डीरेल कर देते हैं और उसको काम नहीं करने देते। मेरा आपको सजेशन ये है कि ये आप जो मैंने आपके सामने 8 रखे हैं, मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ एलसीआई या एज अ डायरेक्टर ऑफ कोहिनूर टेक्सटाइल मिल आपको यकीन से कह सकता हूं कि मुझे इन 8 के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाए वो। मुझे एज अ बिजनेसमैन कोई ताल्लुक नहीं है कि बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो बाद में अलग से देखेंगे। एज अ बिजनेसमैन मुझे ये 8 रेगुलेटरी एजेंसी आप बंदे का पुत्र बना दें, मेरा पाकिस्तान चलना शुरू हो जाएगा और जो हमारी शिकायतें हैं वो ठीक हो जाएंगी। मैं आपको ये एफबीआर है कि नहीं? मैं आपको क्या जी, एफबीआर एक रेगुलेटर और डाल लें, आई कैप, चले जी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये सारे रेगुलेटर्स हैं, आपने इन रेगुलेटर्स को डिसफंक्शनल किया हुआ है। एससीसीबी में कभी बोर्ड ही नहीं बना, नेपरा में ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, ओगरा में ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, पेमरा में ब्यूरोक्रेट फौजी बैठा हुआ है, एफबीआर में इंडिपेंडेंस नहीं हुई। तो ये सारे काम 3 साल में मुशर्रफ के हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि वो जो काम हमने 2004 में रोका था उसको आगे चलाएं। आप भी शामिल थे, आपने अनबंडलिंग की थी वापडा की, ठीक है, याद है आपको? तो ये आगे चलाएं, इस पे बुनियादी काम हो चुका है। आप जो पाकिस्तान में 7-8 आपने रेगुलेटरी एजेंसियां बनाई थी, इंडिपेंडेंट बनाई थी, हम खालिद मिर्जा को जितना मर्जी बुरा कहें, मगर उसने एससीसीबी को एक बेहतर तरीके से चलाया था, ठीक है ना, और अच्छी लोग लेकर आया था। आप ये 8 इस पे काम करें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बाकी फिर हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड। शब्बर ने बिल्कुल सही बात की है कि फोकस्ड रेगुलेशन, ये जो रेगुलेशन की गई थी, डीरेगुलेशन, उसके साथ साथ ये पूरे सेक्टर्स को आपने गवर्नमेंट से निकालने की भी बात की थी। एनर्जी सेक्टर में आपने कॉम्पिटिटिव एनर्जी सेक्टर की बात की थी, वो तो हमने की नहीं। जब वो नहीं आप करेंगे तो फिर ये सारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं इनको आप तकलीफ देते हैं। तो आई थिंक कि बेसिकली एग्रीड के डीरेगुलेशन बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ फिर जो मार्केट में जो मार्केट प्लेस है वहां से गवर्नमेंट को निकालना भी इक्वली इम्पोर्टेंट। सो एनर्जी सेक्टर इज वन वेरी बिग प्लेस वेयर वी कैन हैव अ गुड मार्केट और कंपेटिटिव मार्केट। और ये जो अनबंडलिंग की बात की है, 1990 में हुई थी अनबंडलिंग डिसीजन, और आज 2025 तक आप नहीं कर सके। सो ये तो इशू है कि आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कुछ कर सकते, मुझे एक बात बताइए, ब्यूरोक्रेसी करने नहीं देती। मुझे एक बात बताइए। Can I just add one thing for half a second? मैं ये कह रहा हूँ कि now we are talking institutional autonomy है, so वो वाली जो बात हमने अभी नहीं की थी कि we can understand the government's establishing policy frameworks, but जो institutional autonomy वाला part है ना, वो जो इसकी अब बात शुरू हो गई है, it is not just confined to these regulatory agencies, it applies to all institutions. बिल्कुल सही। Where the policy framework will lie and accountability of performance evaluation, वो उसके साथ है। I'll stop here. मगर मेरा सवाल है ना कि अगर आप ये देखें, अगर मुझे नेपरा से टैरिफ मिल जाता है, मुझे एससीसीबी से कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिल जाती है, मुझे एफबीआर से टैक्सेशन मिल जाती है,
वो लाइट लार्जर पिक्चर में बाद में देखूंगा, अदरवाइज वी आर एंडिंग अप इन टू मच, वी डोंट अचीव एनीथिंग, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, नहीं शबर जो बात कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू ऐड कि ये बात सही है, और लेकिन आप ये देखें ना कि मुशर्रफ ने के शुरू के 3-4 साल में नो डाउट इंस्टीट्यूशंस बेहतर हुए थे और उनके आउटकम्स भी बेहतर हुए थे, बट फंडामेंटली उसने किया क्या? उसने लोग बेहतर लगाए रिलेटिवली स्पीकिंग। और असल बात वही गवर्नेंस का, क्योंकि टॉपिक है गवर्नेंस इज ऑल एज वी आल्सो डिस्कस राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स भी उन्होंने लगाए जो है, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि जब पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो, अगर आप उसको प्राइमरी गोल वो है, एंड इफ यू पुट योर सेल्फ इंटरेस्ट यू नो व्हिच इज आल्सो इम्पोर्टेंट बट बिहाइंड द पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैं आपको लेकिन मिसाल उसके दे बाद देता हूँ, वो जो लेट मी जस्ट कंप्लीट। जी उसके सॉरी, बाद क्या होता है? उसके बाद यही हुआ ना कि वही इंस्टीट्यूशंस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिसमेंटल होते रहे, और मुशर्रफ साहब जो है अपनी लेजिटिमेसी के लिए जो है ना दोबारा फिर उन्होंने जो चीजें की अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए, वो सारी अनवाइंड हो गई ना। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये जो सिस्टम था ना। सस्टेनेबल आउटकम्स तभी इंप्रूव होंगे व्हेन यू हैव बेटर पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। सस्टेनेबल वो होगा जब तक वो इंसेंटिव्स नहीं क्रिएट करते आप, देखिए प्रॉपर हम लोग गवर्नेंस आपकी नहीं कह होगी। रहे हैं, ये तो पॉलिटिशियन ने भी ये काम किया, दे हैव डिफेंडेड ऑल दिस, एंड ठीक है, सो पहली बात ये कि दे हैव बीन डिफेंडिंग ऑल दिस। यस, सो ये कहना है ये कि जो ब्यूरोक्रेट सिर्फ इसमें शामिल था, वो भी नहीं, आई टेल यू के असद जो मुशर्रफ के वक्त में नहीं। एफबीआर में ये कहा गया था कि आप कोई किसी के ऊपर जाके छापा नहीं मारेंगे, कोई ऑडिट नहीं करेंगे, कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, और जी सेल्फ सर, अब्दुल्ला असेसमेंट यूसुफ को पे लगाया था ना चलेंगे। हमारा बात चार्टर्ड सुन ले ना, अकाउंटेंट मेरी अब्दुल्ला बात यूसुफ सुन ले। को, व्हेन यू पुट, वही बात है ना कि व्हेन यू वेट अ पुट द मिनट, राइट लेट मी मैन। फिनिश, लेट मी फिनिश। आप बहुत देखें, मुझे पता है इसकी कि immediately once Musharraf left, the first presentation which was made to the new government was by FBR, और FBR ने कहा जी हमारे हाथ बांधे हुए हैं, ये तो हमें किसी से पूछने ही नहीं देते कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ तो सेल्फ असेसमेंट लगाई हुई है। The new government immediately revokes that and say कि जाके लोगों को पकड़ें और इनसे टैक्स निकालें। So I think it is continuity of a policy and then continuity of reforms, which is very important, and every political government tries to promote their own interest, and they can derail any reform whatsoever. और आप ये देख लें कि आपके जो फोकस रहा है पिछले तकरीबन 15 साल हो गए हैं, फोकस इज ऑन टैक्सेस एंड नॉट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो निजाम जो है वो बिल्कुल स्क्रूड अप है, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू फीड द गवर्नमेंट एपेटाइट फॉर मोर मनी एंड मोर कंट्रोल, मोर पावर्स। उसके लिए आपका टैक्स भी काम कर रहा है। सो आई मीन द एंटायर सिस्टम इज अलाइंड to the interest of the bureaucracy. I want to move you guys very quickly to another issue which is extremely important and pertinent. ये जो प्लानिंग का निजाम है जो फरसूदा हो चुका है, जो इंडिया ने भी रद्द कर दिया है, हमारे पास अभी तक बैठा हुआ है, पीएसटीपी has become a political weapon, और उसके साथ एसोसिएटेड है कि पीएसटीपी के साथ एसोसिएटेड है all the mess that we make to get indebted, और दूसरी चीज उसके साथ I've been there, I know, दूसरी चीज उसके साथ जो एसोसिएटेड है पावर सेक्टर का मेस, क्योंकि you keep putting on these projects without any cost benefit analysis and you get a huge power sector mess. पावर सेक्टर और प्लानिंग दोनों की तरह बात करें, प्लानिंग की और पावर सेक्टर की, हाउ डू वी सॉल्व दिस $1 ट्रिलियन डेफिसिट हर साल हो जाता है, रुपी डेफिसिट सॉरी हर साल हो जाता है, इसको क्या करें हम, हाउ डू वी हैंडल दिस, इसको हैंडल करना है कि नहीं करना, ये इकोनॉमिक गवर्नेंस का हिस्सा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ये इसका हिस्सा है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है उसका मैंडेट आपको चेंज करना पड़ेगा,
और वो उसको आपको रिफॉर्म का मैंडेट देना पड़ेगा टू मेक competitive market economy in Pakistan. और उसके लिए जो जो चीजें करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर भी बैठा होता है, चीफ मिनिस्टर्स भी सारे बैठे होते हैं, they have to agree to all this. जो बातें हम कर रहे हैं वहाँ पे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में they have to be nailed down and they have to say that this is the transformation we are looking at. And इसलिए अब I think they can oversee the entire रिफॉर्म प्रोसेस, जहाँ पे आपने मिनिस्ट्रीज को रिस्ट्रक्चर करना है, मिनिस्ट्रीज को कंसोलिडेट करना है, मर्जर्स करनी है, खत्म करना है, ये एजेंडा होना चाहिए ना नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का। यहाँ तो एजेंडा ही कुछ और है। यहाँ पे एजेंडा है कि जी मुझे क्या मिलेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में आप कौन सी सड़क बनाएंगे, कौन सा डैम बनाएंगे, कौन सी चीजें बनाएंगे। सो आई थिंक द फोकस हैज टू चेंज राइट एट द टॉप। तो और कैसे बताइए ना, जो वो कैसे होगा, सवाल ये है कि वो कैसे होगा। क्या करना है? आपको पहली चीज बताइए। आप मैंडेट कर दें, जैसे एक कंपनी के बोर्ड में आप बैठ के जो बातें करते हैं और उसमें बताते हैं कि ये रिफॉर्म्स होनी है, तो दोज रिफॉर्म्स हैव टू बी फॉलोड थ्रू। एंड इफ जो भी आपने करना है, तो आई मीन यू हैव टू मेक इट इनटू अ पावरफुल बॉडी व्हिच कैन डू दैट, एंड नॉट ओनली दैट the plan right now pretends to make a plan which nobody reads, nobody talks about, it just dies पे वॉल्यूम थम जाता है। क्यों मुझे बताएं कि नदीम, प्लानिंग डिपार्टमेंट या फंक्शन जो है कितने गवर्नमेंट्स में है, कितने मुल्कों में है? ये तो मेरे ख्याल में सेंट्रल प्लानिंग कम्युनिस्ट राह से आ रही है बेसिकली। आई डोंट थिंक इंडिया में या यूएस में या इवन यूके में कोई प्लानिंग इस तरह से डिपार्टमेंट है अब जो है। और लॉन्ग रेंज प्लानिंग, 5 years प्लान जो हम बनाते हैं वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गए दुनिया में। दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि मैं जिसे एक कंपनी के बोर्ड पे हूँ, बैंक के, मैं तो कहता हूँ कि बजट बनाएं और फिर क्वार्टरली उसको एडजस्ट करें। दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है और हमारी प्लानर्स जो हैं वो तो पता नहीं दुनिया से बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है। दुनिया कहाँ जा रही है, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज चाइना, और वहाँ पे उनकी जो प्लानिंग का बहुत जबरदस्त सिस्टम है, and they are the ones who have really ushered in the market economy in China. So I think कि आप प्लानिंग को इस तरह से ना कहें, बट अगर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और एक्नेक का जो अदारा है इसका मैंडेट चेंज करें, इसका ऑब्जेक्टिव्स चेंज करें, तो you can achieve a lot, because you have to coordinate your policies across the federal government, the provincial governments, the district governments, etc. तो वो उसका रोड मैप बड़ा क्लियर होना चाहिए कि how you will do all of this. So in fact जो आप बात कर रहे थे कि मुशर्रफ के टाइम में ये हुआ तो वो खत्म हो गया उसके बाद, तो I think if there was a plan which had been approved by the National Economic Council कि उसके तहत ये सारी reforms होंगी, और वो maybe then it would have continued. But yes, the planning has to change. Planning has to change from project to economic system. नदीम दो बातें करते, देखिए नदीम साहब, बात ये है हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मगर हम पब्लिक में इम्पैक्ट, अगर हमें पब्लिक इम्पैक्ट और अपना पब्लिक परसेप्शन दुरुस्त करना है, जो बात हम सारी बातें कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी बात सच भी बोलनी चाहिए। एक तरफ उसी सेम डे हम ये कह रहे हैं कि पीआईए प्राइवेटाइज होनी चाहिए, बिड आनी चाहिए, और उसी दिन मरियम नवाज का बयान आता है कि एयर पंजाब आनी चाहिए। तो देखिए बात ये ना नदीम साहब, ये देखिए हम, मेरी और आपकी क्या हैसियत रह जाती है जब सबसे बड़े प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर ये कह रही है कि एयर पंजाब आ जानी चाहिए, और वो सारे ब्यूरोक्रेट उल्लू के पट्टे बैठे हुए सर हिला रहे हैं, ठीक है ना, और हमारा पूरा मीडिया, पूरा कोई बंदा ये बात करने को तैयार नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। बात ये तो बुलेट ट्रेन बना रही है शब्बर, बुलेट ट्रेन चला रही है। मेरा मकसद है कि ये अच्छा, और हम लोग इतने खुसरे हैं कि हमारी भी हिम्मत नहीं है कि टीवी पे जाके कह सकें कि यार ये बकवास कर रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है सर, मेरा माइंड व्यू, मैं दोबारा आपसे इस बात पे रीट्रेट कर रहा हूँ, सलमान साहब उस जगह पे रहे हैं, हफीज शेख साहब प्राइवेटाइजेशन कमीशन में रहे हैं, आप किसी वक्त उनसे रिक्वेस्ट करें कि वी हैड अ सेशन विद हिम लास्ट वीक,
मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं कि फर्स्ट 4 ईयर पे जहां मुशर्रफ रुका था, अगर आप वहां से स्टार्ट हो जाएं तो आप पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल सिंसियरली ये बात कह रहा हूं। मैं मानता हूँ। सब इससे आपसे एग्री करेगा कि एसईसीपी में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एसईसीपी में, एफबीआर में, नेपरा में, ओगरा में, पेमरा में, पीटीए में, आप बताएं ये डीरेगुलेशन जो टेलीफोन में हो गई, आपके ख्याल में ये हो जाती अगर पीटीए नहीं होता तो? बिल्कुल आपके ब्यूरोक्रेसी कभी ये होने देती? मैं ये कह रहा हूं कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो एक आदमी काम करके चला गया, गलत या अच्छा जैसा भी किया, मगर उसको वहां से पिकअप करके आगे बढ़े, क्योंकि ये पॉलिटिशियन जो है ना, इनका ये इंटरेस्ट है कि ये सिस्टम खराब रहे। मगर हमारे पास, हमें क्या जरूरत है कि चिली में जाएं या अमेरिका में जाएं? मुशर्रफ साहब ने 4 साल में ये चीजें खड़ी की थी और मेरे हिसाब से गलत नहीं, सही खड़ी की थी। आप वहां से पिकअप करें, आगे चलें, और मैं समझता हूँ दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। और कोई मुझे बाकी हम बाकी करते रहे, हमें कोई फायदा नहीं है। हम बातें करते रहे कि ये करना है, वो करना है। आप मुझे एक बात बताएं कि नेपरा का चेयरमैन ब्रिगेडियर सदोजई क्यों था? ब्रिगेडियर सदोजई, देखिए उससे पहले कौन था? मैं आपको मिसाल था, जब मुशर्रफ था तो उस वक्त चेयरमैन थे जावेद अख्तर साहब, फादर ऑफ मुनीब अख्तर, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेपरा। ठीक है, he was a qualified engineer and a very good engineer and something like that. Then became Mr. Sadojai. The question is कि जब रेगुलेटरी एजेंसी मैंने खड़ी कर दी है और टैरिफ की पावर उसको दे दी है और मिनिस्ट्री को मैंने पावरलेस कर दिया है, मगर नेपरा को काम करने के लिए सच कह रहा है बंदे तो देना प्रॉपरली। अब जो सियासतदान ये कर रहे हैं कि उन रेगुलेटरी एजेंसियों में अपने बंदे फिट करके और वहां उस रेगुलेटरी एजेंसियों को खराब कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और इसमें प्राइवेट सेक्टर के जितने नलायक हैं वो सारे जाके रेगुलेटरी एजेंसी में जाके अफसर बन गए। आप मुझे बताएं, सीसीपी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेंबर लगा है अभी रिसेंटली, वो पहले मेरा एक चीफ कमिश्नर होता था इनकम टैक्स में, तो शायद ऐसा जानता होगा, फैज लाई मेमन। अब मुझे बताएं कि चीफ कमिश्नर, अगर एक आदमी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक प्रोफेशनल किस्म की चीज है, उसका कमिश्नर एक पुराना एक्स आईटीओ कैसे हो सकता है? देखिए ना, प्रॉब्लम बड़ी सही कह रहे हैं। अभी आपको पता है कि नेपरा का चेयरमैन अभी कौन है? अभी कोई फारूकी है, पता नहीं कोई ऐसा नाम है। नहीं, अभी एक वसीम साहब हैं जो के केई के बोर्ड पे होते थे, कराची इलेक्ट्रिक। अब वो कराची इलेक्ट्रिक के जो बोर्ड पे होते थे और अब वो चेयरमैन हो गए हैं। मुझे बताएं, वही ब्यूरोक्रेट की एडिशनल सेक्रेटरी जो है वही लगा रहे। अब वो कहाँ, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या होगी व्हेन यू अप्रूव यही तो कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ, ये सही है। देखें, दैट्स फंडामेंटल, द क्वालिटी ऑफ पीपल, putting the right people, that is fundamental to governance। जो शब्बर ये कह रहे हैं, I fully endorse that। मेरा आंसर, मेरा जो आपसे सवाल कहना है, मेक वन पॉइंट शेयर। नहीं, पहले आप देखिए, लेट्स स्टे ऑन द एजेंडा, अदरवाइज हाँ, ये एजेंडे की प्लानिंग, ये बहुत ही, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजेंडा नदीम। गवर्नेंस इज ऑल अबाउट पीपल। वो बात में करेंगे। ये रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी उससे ज्यादा ऊपर जाऊंगा। असल बात यह है कि इफ यू वांट आउटकम्स तो यू नीड टू अपॉइंट द राइट पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम द कैबिनेट, द सेक्रेटरीज। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स भी आपके पास अच्छे हैं, बट द पॉइंट इज हमारा जो सिस्टम है, लेट मी जस्ट कंप्लीट, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने अपना बंदा लगाना होता है हर जगह पर जो मेरा काम करे। हमने ऑब्जेक्टिव वो बंदा नहीं लगाना जो कि पब्लिक के लिए और आउटकम्स बेहतर करे ना। ये एस्पेक्ट आप एक फंडामेंटल फैक्टर ठीक कर दें तो आपकी गवर्नेंस ठीक हो जाएगी। कैन वी अग्री टू टेक थिंग्स सेपरेटली, वरना सब कुछ एक मिक्स हो जाएगा। पहले मुझे बता दीजिए, हमने ओपननेस डिस्कस कर लिया, रेगुलेशन डिस्कस कर लिया, मार्केट डिस्कस कर लिया, वगैरह वगैरह। अब मुझे बताइए, प्लानिंग पे आप लोग रुक गए हैं। आप लोगों का, मेरा नहीं ख्याल आप कंसिडर कर सके। देखिए, जो प्लानिंग का निजाम है, जो दुनिया में भी है,
प्लानिंग ये नहीं कि प्लानिंग हो. There is in every country the budget is made for the medium term as well as the short term. अमेरिका की प्लानिंग होती है budgetary planning. Forget about planning, भूल जाए, planning गलत बात है, मतलब in sense budgetary planning होती है 10-year cycle में. I think Finland has gone to 100-year cycle. People have a medium term budget and they fix the short term. हमारे भी जो planning का system था, the plan was supposed to be a 5-year budget. ठीक है, अब 5-year budget हमारे पास है कोई नहीं. We have an annual budget, बल्कि we don't even have an annual budget. We have a क्वार्टरली बजट, क्योंकि हर क्वार्टर पे IMF आता है, हम नए बजट बना देते हैं, मिनी बजट जिसको कहते हैं. द क्वेश्चन इज कि प्लानिंग का कोई डिपार्टमेंट, चले प्लानिंग छोड़ दे, प्लानिंग नहीं कहते उसे. डू वी नीड अ मीडियम टर्म बजट और डू वी गिव द मीडियम टर्म बजट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द फाइनेंस, देन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. फाइनेंस मिनिस्ट्री मीडियम टर्म बजट मैनेज करेगी या एनुअल बजट मैनेज करेगी? आई थिंक द वेरी कॉन्क्रीट क्वेश्चन जो हमें सोचना चाहिए कि क्या होना चाहिए. और दूसरी चीज पीएसटीपी, यस, इन्वेस्टमेंट बजट होना चाहिए. यहाँ रुक जाए सर, एक मिनट यहाँ रुक जाए सर, एक मिनट. आप मुझे बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात कही. हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है और उन्होंने एक चीज बनाई है जो चल रही है, जिसका नाम है उड़ान पाकिस्तान. अब आप कैसे कहते हैं कि वो प्लानिंग नहीं है? देखिए ना, प्रॉब्लम ये है, अब उनके दिमाग में उड़ान पाकिस्तान इज द पाकिस्तान प्लान. अब वो जो बंदा उड़ान पाकिस्तान खेल रहा है, आप उसकी माइंडसेट को गौर करें ना सर. वो प्लानिंग का मिनिस्टर है, आप भी वहीं पहुंचेंगे ना सर. प्लानिंग का मिनिस्टर है, उसने एक चीज बनाई है, इसका नाम है उड़ान पाकिस्तान. अब उस उड़ान पाकिस्तान के अंदर जो वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ना कि प्लानिंग. एम आई राइट? ठीक है. Absolutely, I have written a detailed article on this, Shabbar. You may have read it. हाँ, नहीं, मैंने पढ़ा है. उसमें तो कैलकुलेशन वो कह रहे हैं कि 8 to 9% ग्रोथ हम करेंगे अगले बात से एग्री कर रहा हूँ. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फिर हमें ये कहना पड़ेगा इस फोरम के थ्रू कि ये जो उड़ान पाकिस्तान ने बनाया है ये बकवास है, और उसमें तो रेवेन्यू का सेक्शन ही नहीं है कि रेवेन्यू कितना आएगा. अगर आप उड़ान पाकिस्तान पढ़ें, उसमें ये कहीं लिखा ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या रेवेन्यू आएगा. तो पहले हमें इस फोरम से ये कहना चाहिए कि जो आज सो कॉल्ड प्लानिंग के नाम पे की जा रही है, इसको डिस्कार्ड करें और एक प्रॉपर प्लानिंग करें. पहला हमारा 1 पॉइंट आंसर ये होना चाहिए ना सर. देखिए, वो तो समझ रहे हैं हम प्लानिंग कर रहे हैं. वो तो उनके हिसाब से. दूसरा एस्पेक्ट उसमें शब्बर, एक और जो है प्रॉब्लम, आई थिंक अगर इस फोरम से आप करना चाह रहे हैं तो ये भी कहें कि आपने, सलमान शाह साहब इसको बेहतर समझ सकते हैं. जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि प्लानिंग जो है ना, वो एक अलग प्लानिंग कर रहा होता है और एक्चुअल जो मॉनिटरिंग और फंडिंग होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती है. तो दे डोंट टॉक टू ईच अदर ऑल्सो. बिल्कुल ही मतलब अलग. वी डोंट हैव व्हाट इज कॉल्ड होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच. एक होलिस्टिक मतलब ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू आपके पास है कि नहीं, फंड्स आपके पास हैं कि नहीं, वो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताएगी ना. देयर इज अ कंप्लीट डिस्कनेक्ट बिटवीन उड़ान एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द बजटिंग. आप ये देखें कि जो प्लान होता है, 5-year प्लान, अगर आप बना भी रहे हैं उसको, और फिर जो बजट्स हैं वो आपस में रिकंसाइल नहीं करते. नहीं सर, अगर मेरा सवाल है ना कि आप आई थिंक अब लेट्स इसमें ये है कि नंबर 1 जो नदीम ने बात की कि मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट, लेकिन उसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं होता. इसी तरह जो भी ऊपर से आप चीजें लेके आते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि नीचे एक ब्यूरोक्रेसी बैठी है जो इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देती और वो निज़ाम का हिस्सा नहीं बनते. वो एक ऊपर से एक पैच वर्क बन जाता है. सो आई थिंक वी दैट्स व्हाई वी नीड वेरी डीप रिफॉर्म्स. अब शब्बर ने जो बात की थी अबाउट मुशर्रफ, उसका मैं एक बड़ा एग्जांपल आपको, इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन मुशर्रफ के he thought के डंडे के साथ सब कुछ चल सकता है. और आपको याद होगा कि उन्होंने एक सर्वे करवाया था टैक्सेस के ऊपर और हर घर में फौजी गया था और उसने देखा था कि क्या चीज है यहाँ पे, क्या एसेट्स हैं, क्या कारोबार क्या हो रहा है. एंड गोदाम और फॉर्म्स के साथ भर गए थे. लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ था कि इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई थी. There was panic in the government and then they decided to go in which they
really disabled the FPR and they said कि भाई अब आप सिर्फ सेल्फ असेसमेंट के ऊपर काम करेंगे और जो भी बंदा अपना करेगा जमा कराएगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको रसीद काट के देंगे, आप उससे बात भी नहीं करेंगे. And then, I mean, tax revenue started to shoot up. So one was a very coercive method which really killed the economy. The other was a kind of a very liberal method. You accepted whatever the self-assessment was, and taxes started to going up. So ये हमारी economy में incentives really do work. And if you create a proper incentive compatible system, तो ये सारा काम हो सकता है. अब हम जो प्लानिंग की भी बात कर रहे हैं, NEC I think is really a rubber stamp for the politicians. तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा ना. अगर आपका ऑब्जेक्टिव हमने पहले बात की कि हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, और जब आप मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो देन द प्लानिंग हैज आल्सो टू चेंज अकॉर्डिंगली. और प्लानिंग में आपने देखना है नंबर 1 के रिफॉर्म्स क्या क्या होनी है, डीरेगुलेशंस क्या क्या होनी है, वो सारी चीज़ों को आपने डॉक्यूमेंट करके सामने लाना है ताकि उस पर अमल हो. और प्लानिंग के पास जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स हैं उसके साथ आप उसकी मॉनिटरिंग भी करवाएं. And you go right down to the district level and find out what the hell are they doing over there. जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, क्या वो कोई काम भी उसका हो रहा है, कोई डिलीवरी भी हो रही है, और what are the gaps in development which we have, उसको आइडेंटिफाई तो करें ना कि जी ये हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं इसमें ना तो सड़कें हैं, ना कोई इसमें कनेक्टिविटी है, ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, ना डिजिटाइजेशन है. So these are the things which planning should be looking at and bringing the latest into our view, and उसके मुताबिक फिर इसको आगे हम जाके implement करें. So I think every government department has to really revamp and start it from zero base actually, and redefine their objectives have to be redefined and all that. And if they are not useful, we should shut them down. अच्छा जी, let me just say this. नदीम, ये ऑन दी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो शाह साहब ने बात की, मेरा उस पर सवाल है. मैंने जो देखा है, नेशनल शाह साहब तो रहे हैं मेंबर, मैं भी एज व्हेन आई वाज प्रोविंशियल मिनिस्टर आई आल्सो वाज पार्ट ऑफ दिस. देखें, एक दिन में जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का फोरम है, ये बिल्कुल ही मतलब दिस इज जस्ट सेरेमोनियल. आपने जैसा अपना फुटप्रिंट और अंगूठा लगाना होता है बेसिकली. और मुझे बताएं कि उसमें चैलेंज कौन करता है? जो भी होती है आपको प्रूव करना होता है. तो आई थिंक वी नीड टू थिंक दिस इफ वी वांट अ मीनिंगफुल फोरम. तो इसको तो दोबारा हमारे जो एग्जिस्टिंग फोरम्स हैं उनको हमने रीथिंक करने की जरूरत है मेरे ख्याल में. ये एक पता नहीं, देखें, ये अंग्रेज के सिस्टम को हमने इवॉल्व करके ये चीजें बनाई हुई हैं. 40-50 साल पुरानी दुनिया चेंज हो गई है. दुनिया बहुत एजाइल हो गई है. बहुत डे टू डे जो चीजें चेंज हो रही हैं उसके हिसाब से आपको डिसीजंस करने होते हैं. ठीक है, आप ब्रॉड विजन आपका जरूर हो सकता है, आप विजन्स रखें, लेकिन जैसे दुनिया चेंज हो रही है तो आपको अपने डिसीजंस चेंज करने होंगे. आपको compete करना होगा, आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए. आपको अगर आप चाह रहे हैं तो जाहिर है what you need is you need better institution, and for good institutions you need good people. Fundamental to good governance is good people. Unless you have the right person for the right job, we will not be able to achieve anything. We interject here. I think काफी टाइम हो गया. We'll call it a halt today. सर नदीम साहब, एक सवाल है असद से कि वो गुड पीपल करे जा रहा है. मुझे बताएं ना कि मरियम नवाज और बिलावल गुड पीपल डिसाइड कर सकते हैं? क्या बात कर रहे हो असद, खुदा का वास्ता यार. गुड पीपल डिसाइड कौन करेगा? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, जुनैद सफदर किस दुनिया में बैठे हो? जी लेट मी आंसर दैट. क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए बात ये है, वी हैव गुड पीपल आप तो डिसाइड नहीं करोगे ना, बिलावल करेगा ना. बिल्कुल पास करेगी ना. ये है, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दैट. देखें, ये सिस्टम तब सही होगा जब आप अगर पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है आपके पास, तो उसके हिसाब से आप चलेंगे. देखें, सब वी आल्सो मेक मिस्टेक्स.
nobody is ideal. होगा ना। अच्छा जवाब तो देने देना। अच्छा आप सवाल करें फिर मेरा जवाब सुन लें या तो गुड, आप कह रहे हो गुड पीपल गुड पीपल गुड पीपल। अब गुड पीपल का अल्टीमेट डिसीजन बिलावल भुट्टो मरियम नवाज ने करना है ना। 2 मिनट इंटरजेक्ट हियर, मेरी बात में बात करें, सब 1 मिनट लेट्स नॉट बी इमोशनल ना। नदीम साहब उनको सवाल करने दें, मेरा जवाब सुन लें, 2 मिनट जस्ट गिव मी 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आई थिंक वी हैड इनफ। हमने बहुत अच्छी चीजें डिस्कस करनी है, बहुत चीजें, बट अनफिनिश्ड एजेंडा जो अगली बारी लेंगे। मैं एजेंडा आपको बताता हूँ। नंबर 1 जो असद बात कर रहे हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, हाउ टू गेट द राइट मैन टू द राइट जॉब, बिल्कुल सही है, वी हैव टू टेक इट। नंबर 2 इशू विल टेक अप कैविएट ऐड करें, ये गलत कह रहे हैं आप। दिस इज अ थ्योरी, आई डोंट एग्री विद दिस। नहीं हम डिस्कस करेंगे। नदीम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन थ्योरेटिकल डिस्कशन। नो अग्रीड। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स सी वेदर यू कैन कम अप विद सम कॉन्क्रीट सजेशन। थ्योरी लेटर, ये तो अंग्रेजी का जुमला है ना, गुड पीपल फॉर गुड वर्क, ये क्या बकवास है? नहीं मैं आपको इसका कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी एक बात हो रही है जो हमारे मुल्क में एक रीच बन गई है, बिकॉज जजों ने लगा दिया है कि आप सर्च कमेटी बनाए। सर्च कमेटी, वही मिनिस्टर बैठ जाते हैं, वही लोग बैठ जाते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं और अपना ही बंदा लगा देते हैं। नेपरा में भी हुआ, उगरा में भी हुआ है, चांसलर वाइस चांसलर में भी हुआ, हर जगह हुआ है। तो ये सर्च कमेटी वाली बात, दुनिया का बहुत लिटरेचर इस पर पढ़ा है, मैं उसको अब बैठ के समराइज भी करता हूँ। ये लिटरेचर है, हाउ टू गेट द राइट पर्सन, गुड पीपल फॉर द, बट वी शुड डू इट। फॉर एग्जांपल जवाब देने के लिए आप इसका 1 मिनट देंगे मुझे जवाब देने के लिए? जी नवाज ने सर्च कमेटी बनाई थी, फर्गूसन ने शॉर्टलिस्ट करना था और एक कमेटी ने अप्रूव करना था। मैंने 23 बंदे दिए थे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, 23 बंदे वर शॉर्टलिस्टेड एंड वी गेव 5 गुड पीपल फॉर एवरी जॉब। वुड यू बिलीव, नॉट अ सिंगल पर्सन वाज अपॉइंटेड। आप किस दुनिया में बैठे हैं नदीम साहब? आप किस दुनिया में रहते हैं? बिल्कुल सही है। ये बेकार की बातें हैं। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, आप इनसे कह रहे हैं कि गुड पीपल की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तभी तो मैं कोशिश कर रहा था, जो नहीं बात हुई, कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल जो रिफॉर्म चाहिए टू बैक दिस अप। मैंने तो वहां से शुरू की थी बात, पीपल आप थे नहीं उस वक्त, पीपल वांटेड टू गो टू इकोनॉमिक गवर्नेंस, सो यस वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल साइड टू। बट मैं ये कह रहा हूँ अगली बारी के लिए फिक्स कर लेते हैं। दूसरी चीज जो हमने अभी बात नहीं की, नहीं अगली बारी में नदीम, then you can add in अगली बारी ये होगा, एक तो मेरिट होगा, दूसरा फिस्कल गवर्नेंस, टैक्स, फिस्कल और मीडियम टर्म बजट जो हमने सॉर्ट आउट नहीं किया। मीडियम टर्म बजट यार वो मैक्रो लेवल पे अभी ना तुम जाओ। अभी जो हम आज बात कर रहे थे, जो तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी थी कि प्लानिंग डिवीजन का क्या करें। सो लेट्स फोकस ऑन प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन, जस्ट प्लानिंग। और इसको रखना है, खत्म करना है या रिफॉर्म करना है, एंड व्हाट शुड बी द रिफॉर्म्स इफ एनी। साहब इसका सिर्फ एक तरीका है कि जो भी आदमी किसी बड़ी जॉब के लिए अपॉइंट हो, फॉर एग्जांपल नेपरा के लिए अपॉइंट हो, वो नेशनल असेंबली और सेनेट की कमेटी में प्रेजेंट हो, और उसकी जिस तरह अमेरिका में प्रेजेंटेशन होती है प्रेजेंटेशन हो, और वो लाइव टेलीकास्ट। मैं देखता हूँ कौन माइकल। I think we should also discuss the effectiveness of our legislature. वहां से parliamentary form of government शुरू होती है ना। अगर हमारी standing committees effective हो, उनकी composition सही हो, हमारी parliament सही हो, तो काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। Do you think कि आप जो बात कर रहे हैं शबर standing committees का, what is the quality of our standing committees? आप चेयरमैन एफपीआर की अपॉइंट हो, उसको प्रेजेंट करें, टीवी पे टेलीकास्ट देखता हूं मैं कौन भाई का डाल आता करेंगे, बारी बारी सब कुछ करेंगे। 2 मिनट अभी ये देख लेना। अगली चीज जो हमने डिस्कस करनी है, पॉलिसी मेकिंग होती कैसी है। ये एनईसी जो फरसूदा बॉडी है, इस किस्म की बड़ी बॉडीज है और कमिश्नरें बन जाती हैं, ये कैसे होती है। इसके साथ है कि पॉलिसी में रिफॉर्म का एलिमेंट कितना है, कोई भी नहीं है। फिर इसके साथ एक और भी चीज है, कोऑर्डिनेशन, जो हम सब बात कर रहे हैं। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग द गवर्नमेंट, साइलोज बने हुए हैं। मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी जो मर्जी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके करा लेते हैं। तीसरी चीज जो है कि डोनर्स का जो इम्पैक्ट है, लेंडर्स का इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी, और लोकल इम्पैक्ट क्या है। चौथी चीज जो आपने कही है, जो आप सब बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस क्या है, तो इकोनॉमिक गवर्नेंस। अभी हम इकोनॉमिक्स पे रहेंगे, और ये आई थिंक अगर हम थोड़ी बहुत बात करें, इसके अंदर और चीजें ऐड कर सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड फिनिश इट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई है। लोग इतना सर कोऑर्डिनेशन, आप कोऑर्डिनेशन में एक और चीज भी डाल लें। नदीम, तुमने तो 100 साल का एजेंडा दे दिया यार, बात करके सिर्फ इकोनॉमिक गवर्नेंस पे करो। तो ये
बातें कर उसमें रहा हूं। होल ऑफ द गवर्नमेंट हाँ, और इकोनॉमिक जो गवर्नेंस इन्होंने बात की है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच डिस्कस कर लें जो आप कह रहे only हैं। let's start. जो आज आपने रेस की है ना, द प्लानिंग Planning. डिवीजन, वो अब सब कुछ आएगा। सिंगल पॉइंट एजेंडा रखो. Do we need it and do we finish it? Do we चल। get a new thing? And क्या अगर नहीं है तो वो क्या होना चाहिए? Just ठीक है, keep it चल। focused. अगली बारी फिर ये करते हैं. Thank you very much, folks. I think it was a good discussion. We've got a number of things. We've got things on openness. We've got things on regulation. We've got things on price fixing. We've got things on the strategy and the move forward. We've got things on the fact that the regulatory nizam kya hona chahiye. Shabbar has given us 7 agencies that were built. There was a reform movement done in Musharraf's time. I agree. I wholeheartedly agree. It should be continued. It should have been continued. It wasn't. Wahan phir aa jati hai baat ke politicians do tend to scrap reform as it happens. So we'll talk about that next time, inshallah. Thanks a lot, folks. It was a great discussion. Thank you. All the best. Khuda Hafiz.